Hello students, welcome to my class. So today we are going to discuss about acceleration. So acceleration के बारे में जानने से पहले हम पहले क्या सीख चुके हैं वो देखते हैं. तो हमने सीखा है स्पीड. स्पीड क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. सपोज कि कोई एक बॉडी ए से बी तक जा रहा है, तो वो कौन सी गति से वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे हम कहेंगे स्पीड. और वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी का मतलब है एक व्यक्ति एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक कौन सी गति से जा रहा है, उसी का मतलब है वेलोसिटी. आप इस इमेज में देख सकते हो कि ए से बी तक का रास्ता ये पिंक वाला रोड है जो कर्व्ड रोड है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक का स्ट्रेट लाइन. तो जिस गति से वो ए से बी तक जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, उसे हम कहेंगे वेलोसिटी. सो हर वक्त डिस्टेंस बदलने से हमें मिलता है स्पीड और डिस्प्लेसमेंट बदलने से हमें मिलता है वेलोसिटी. क्या हमेशा वेलोसिटी जब गाड़ी चलती रहती है एक जैसे ही रहती है? क्या ऐसा हो सकता है या फिर क्या ऐसा होता है? सोचो. ये सोचो कि एक गाड़ी एक ही स्पीड में हमेशा जाती रहती है. क्या ऐसा हो सकता है? इसका जवाब है नहीं. एक गाड़ी एक ही स्पीड में हमेशा नहीं जाती है. आप देख सकते हो कि गाड़ी जब स्टार्ट देता है तो उसका स्पीड 0 रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 गाड़ी स्पीड पकड़ती है. थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फिर जब खाली रास्ता होता है तो और ज़्यादा स्पीड हो जाता है. तो हमेशा यह वेलोसिटी या फिर स्पीड हर समय 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 के आधार पर अलग अलग होता रहता है. नाउ लुक हियर. A body at rest goes from position A to position B. So his initial velocity was 0 and he takes some velocity, and finally when he reaches V, his final velocity becomes V. So here U is the initial velocity, V is the final velocity. So you can see that the velocity has changed. And how much the velocity has changed? It is v minus u, that is the final velocity and minus the initial velocity. और जिस रेट में यह वेलोसिटी चेंज होता रहता है इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन. एंड एक्सेलरेशन का मतलब है कितना वेलोसिटी हर वक्त कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन. मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t. That is, acceleration is the change in velocity per unit time. That is, the rate of change of velocity is known as acceleration. Now let's come to the unit of acceleration. So we have a is equal to v minus u divided by t, and unit of a is unit of v divided by unit of t. What is the unit of v? Unit of v is meter per second. Unit of t is second. So unit of a is equal to meter per second divided by second, which is meter per second square. Now let us imagine a uniform motion in which a object in position A moves to position B uniformly, and in uniform motion the body is in constant speed. So initial velocity will be equal to the final velocity in this case, because equal distances are covered at equal interval of time, which means same distance is covered every second by the object. That means the object is at a constant speed, which means from the starting to the ending of the journey the speed is same. इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल होते हैं. Now, for a body in uniform motion, so if the body was at a velocity of 10 km per hour initially, guess the final velocity.
Now you have got the idea that the initial velocity is same as the final velocity in a uniform motion. So obviously the final velocity will also be equal to 10 km per hour. So for a body in uniform velocity, the initial velocity is equal to the final velocity. Now let's calculate its acceleration. We know that acceleration is change in velocity divided by time. So we have a is equal to v minus u by t, but v is equal to u. So v minus v by t, which is equal to 0. So acceleration is 0 for the uniform motion. Now what happens in uniform motion? The speed or the velocity remains constant. So whenever the speed and velocity remains constant, then the acceleration becomes 0. Now let us consider another condition. यहाँ पर एक आदमी पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अलग अलग होंगे. नॉट ओनली दिस, एट एवरी मोमेंट द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विल गेट चेंज्ड. सो आइदर इनिशियल वेलोसिटी बड़ा होगा फाइनल वेलोसिटी से, या फिर फाइनल वेलोसिटी बड़ा होगा इनिशियल वेलोसिटी से, बट not u is equal to v. Now let us find the acceleration for whenever u is less than v. Suppose एक आदमी अपने घर जा रहा है रेस्ट पोजीशन से, और उसका फाइनल वेलोसिटी घर में पहुंचने पर 8 मीटर पर सेकंड होता है और 40 सेकंड में वो अपने घर पहुंच जाता है. तो कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t. So v minus u by t is equal to 8 minus 0 by 40, which is equal to 0.2 meter per second square. अब चलो देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होता है. सो लेट अस सपोज दैट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. कहीं पर वो रुक गया है और वो स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकेंड की गति में था और टाइम उसे लगा 10 सेकेंड. सो वी हैव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. ये याद रखो, ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा. सो दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 10 बाई 10 विच इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया. सो हमें अभी क्या मिला? पहले केस में हमें मिला एक्सेलरेशन पॉजिटिव और दूसरे केस में हमें मिला एक्सेलरेशन निगेटिव. जब इनिशियल वेलोसिटी कम होता है फाइनल वेलोसिटी से, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होता है फाइनल वेलोसिटी से, तब एक्सेलरेशन निगेटिव होता है. तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या निकलता है इससे? जब इनिशियल वेलोसिटी कम होता है और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा, यानी गाड़ी कम स्पीड से धीरे 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 बढ़ता जाता है और फाइनली वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड में होता है, यानी एक्सेलरेशन उसका बढ़ता रहता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता रहता है. लेकिन जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होता है फाइनल वेलोसिटी से, इसका मतलब है गाड़ी पहले ज़्यादा स्पीड में था और फिर बाद में वो धीरे 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 कम होता गया, यानी वो एक्सेलरेशन कम होता गया, निगेटिव की तरफ जा रहा है. इसे निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं या फिर इसे डी एक्सेलरेशन कहते हैं. सो अभी हमें क्या पता चला है कि जब एक्सेलरेशन निगेटिव होता है बॉडी अपना स्पीड घटाती जाती रहती है, बॉडी की स्पीड धीमी होती जाती रहती है. इसी का मतलब है एक्सेलरेशन निगेटिव होना, यानी डीएक्सेलरेशन. दैट मीन्स द बॉडी इज स्लोइंग डाउन. और इसी तरह एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है बॉडी धीरे से लेकर फास्ट तक जा रहा है, यानी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. दैट मीन्स द बॉडी इज गोइंग फास्टर. और इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर डायरेक्टली एक्सेलरेटेड मोशन. तो चलो देखते हैं आज हमने क्या सीखा.
तो हमने सीखा व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसके बाद हमने सीखा एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के बारे में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। उसके बाद हमने सीखा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द बेसिक यूनिट। इट कैन बी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर एटसेट्रा, बट द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन वी राइट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Then we have got that when a is equal to 0, then body is in uniform motion। यानी जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल होता है। उसके बाद हमने सीखा जब हमें a लेस देन 0 यानी a निगेटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव मिलता है, तब बॉडी एक डी एक्सेलरेटेड मोशन में होता है। सिमिलरली जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कम होता है फाइनल वेलोसिटी से, यानी बॉडी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाती जाती रहती है, तो हमें एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 मिलता है यानी पॉजिटिव मिलता है। अब आते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला में। हमारा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यही है इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इससे हमें अगर कोई 3 पैरामीटर यानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दिया रहता है तो हम एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हैं, या फिर फाइनल वेलोसिटी अगर ढूंढना हो तो हमें इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ होना चाहिए, कुछ इस तरह। तो ये है एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो इसे भी आप याद कर रखोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और सब कुछ आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना ही है।